Good morning, class. So, as we have started our new unit, that is government budget and the economy, and we have covered what is government budget and its objectives in our last lecture. So, in this lecture, we will start with the structure or components of the budget. That is, what all is included in a government budget. So it is the government budget at a glance, and now we will study further about it. First, there are two broad components of the government budget, that are budget receipts including revenue receipts and capital receipts, and budget expenditure including revenue expenditure and capital expenditure. Budget के दो main components होते हैं, first is budget receipts और second is budget expenditure. So what are budget receipts? Budget receipts refers to estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. Budget receipts government की estimated money receipts होती है, जितना भी मतलब government को पैसा मिलेगा money की form में सारे सोर्सेज से एक फिजिकल ईयर में, और वी कैन से एन अकाउंटिंग ईयर, वो बजट रिसीप्स होती हैं ऑफ दी गवर्नमेंट. एंड बजट रिसीप्स फर्दर दो टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट इज़ रेवेन्यू रिसीप्स एंड सेकेंड इज़ कैपिटल रिसीप्स. What are revenue receipts? Revenue receipts are receipts which do not have a direct impact on the assets and liabilities of the government. It consists of money earned by government through tax and non-tax sources. Revenue receipts वो receipts होती हैं government की जिसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है गवर्नमेंट के किसी भी एसेट या लायबिलिटी पे, और ये गवर्नमेंट को टैक्स या नॉन टैक्स सोर्सेज से मिलती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट कर रही है तो वो रिसीप्ट गवर्नमेंट की लिए कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं करेगी, और गवर्नमेंट के किसी भी एसेट में रिडक्शन नहीं होगा उस रिसीप्ट की वजह से. सो उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट की एसेट या लायबिलिटी के ऊपर. ओके, सो वो हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहलाती हैं. Now coming to the classification of revenue receipts, as we have studied that revenue receipts are collected from tax and non-tax sources. So what are these, what can be these sources? We will study about it. First are the tax receipts. Tax is a compulsory payment to the government by the households, firms or other institutional units. टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट को हाउस होल्ड्स को करना होता है, या कोई भी फर्म्स हो गए या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया जो रन कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उसको अपनी इनकम पे जितना भी मतलब पेमेंट करना होता है गवर्नमेंट को, एक कंपलसरी पेमेंट, वो हमारा टैक्स कहलाता है. तो टैक्सेस आर ऑफ 6 टाइप्स एंड these are, first are the progressive and regressive taxes. Progressive taxes, a tax is said to be progressive when the rate of tax increases with an increase in income, so that real burden of tax is more on the rich and less on the poor. Progressive tax में क्या होता है, जैसे जैसे पर्सन की इनकम इंक्रीज़ होती जाती है या वो अमाउंट इंक्रीज़ होता जाता है जिस पर टैक्स इम्पोज करना है, वैसे वैसे रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज़ होता जाता है. यानी कि जिनकी इनकम कम है उनको टैक्स कम देना पड़ता है, और जिनकी इनकम ज़्यादा है उनको रिलेटिवली टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है. तो इससे क्या होता है, जो बर्डन होता है टैक्स का वो रिच पीपल पे ज़्यादा होता है दैन दी पुअर पीपल. नेक्स्ट इज़ रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स इज़ दैट टैक्स in which the rate of tax decreases as the amount subject to taxation increases. It causes greater burden on the poor than the rich. प्रोग्रेसिव टैक्स में जैसे जैसे अमाउंट बढ़ रहा था वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ रहा था. रिग्रेसिव टैक्स में जैसे जैसे अमाउंट जिस पे टैक्स लगना है वो इंक्रीज़ होगा, वैसे वैसे टैक्स का रेट भी रिड्यूस होता जाएगा. ये प्रोग्रेसिव टैक्स का अपोजिट होता है. तो इससे क्या होगा कि जो मतलब रिच पीपल हैं उन पे लेस बर्डन होगा और पुअर पीपल पे ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, क्योंकि जिनकी इनकम कम है उनको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा. नेक्स्ट इज़ द वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्सेस. Value added tax is an indirect tax which is imposed on the value added at various stages of production. GST is an important form of value added tax. Value added tax एक indirect tax है और ये इम्पोज किया जाता है जितनी भी वैल्यू ऐड हो रही है हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे. सी
जैसे अगर प्रोड्यूसर ने 100 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज़ किया, उस पर 15 रुपीज़ टैक्स दिया, तो जो 100 अब जो मतलब प्रोडक्ट हो गया वो 115 हो गया। अब उस पर आगे जो अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा मतलब किसी वेंडर को, या फिर हम कह सकते हैं किसी होलसेलर या रिटेलर को वो देगा, तो वो हर स्टेज पे उसमें क्या होगा कि वो अपना अपना टैक्स ऑन ऐड ऑन करते जाएंगे, और जो फाइनल टैक्स होता है वो किसको पे करना होता है, वो कस्टमर को पे करना होता है। तो यहाँ पर वैल्यू एडेड टैक्स क्या है कि हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, फ्रॉम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल टू द फाइनल सेल ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी टैक्सेस ऐड ऑन होते हैं वो हमारा वैल्यू एडेड टैक्स कहलाता है। उसके बाद में हमारा होता है स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है? स्पेसिफिक टैक्स वो टैक्स होता है जो एक कमोडिटी पर उसकी यूनिट्स के बेसिस पे, या उसके साइज़ के बेसिस पे, या उसके वेट के बेसिस पे लगाया जाता है। यानी कि 100 यूनिट्स पे एक पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स होगा, फिर फॉर 200 यूनिट्स देयर विल बी अ डिफरेंट रेट ऑफ टैक्स, और एक पर्टिकुलर वेट के लिए इतना टैक्स लगाया जाएगा। तो स्पेसिफिक टैक्स किस लिए होता है? इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट साइज और वेट ऑफ द प्रोडक्ट। उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो वही पर्सन पे करता है जिस पे वो लीगली इम्पोज किए जाते हैं। इसका वो अपना टैक्स का बर्डन किसी और पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स है, तो जिसकी इनकम पे वो टैक्स लगेगा वही पर्सन उसको पे करेगा। या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है, तो वही पर्सन पे करेगा जिस मीन्स जिस कंपनी के ऊपर, जिस कंपनी का प्रॉफिट्स हैं उस पर टैक्स लगा है, वही कंपनी उसको पे कर सकती है, उसके बिहाफ पे कोई और पे नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आर दी इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो एक पर्सन पे इम्पोज किए जाते हैं, लेकिन कोई और पर्सन उसको पे करता है। जैसे इसका बर्डन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे जीएसटी का एग्जांपल है, जीएसटी इम्पोज किया जाता है ऑन द कंपनी जो मतलब प्रोडक्ट्स बना रही है, लेकिन उसका पेमेंट कौन करता है? कस्टमर्स करते हैं। वो अपना टैक्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है टू दी कस्टमर्स। नाउ द नेक्स्ट आर दी नॉन टैक्स रिसीप्स। अभी तक हमने पढ़ी थी जो टैक्स सोर्सेज होते हैं रेवेन्यू रिसीप्स के, और अब नॉन टैक्स सोर्सेज पढ़ेंगे। नॉन टैक्स सोर्सेज वो सारे सोर्सेज होते हैं या वो सारी रिसीप्स होती हैं जो गवर्नमेंट को मिलती हैं उन सोर्सेज से दैट आर अदर देन टैक्स। मतलब टैक्स के अलावा किसी और सोर्स से अगर गवर्नमेंट को रिसीप्स मिल रही हैं तो वो नॉन टैक्स रिसीप्स कहलाती हैं। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ नॉन टैक्स रिसीप्स, कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे गवर्नमेंट को अदर देन टैक्सेस रिसीप्स होती हैं। देन फर्स्ट इज़ द फ़ी। फ़ी इज़ अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पीपल। मतलब गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज अपनी पब्लिक को ऑफ़र करती है उसके लिए जो भी फ़ीस पे करती है पब्लिक गवर्नमेंट को, वो फ़ीस कहलाती है। जैसे हम अपने लैंड के रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस पे करते हैं, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस पे करते हैं, पासपोर्ट फ़ीस पे करते हैं, कोर्ट फ़ीस पे करते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आर दी फाइन्स। फाइन्स वो पेमेंट होते हैं जो पब्लिक करती है गवर्नमेंट को अगर वो उसके किसी भी लॉ को ब्रेक करती है तो। नेक्स्ट इज़ एस्टीट। Estate refers to that income of the state which arises out of property left by people without a legal hire। जितनी भी रिसीप्ट से गवर्नमेंट को होती है, अगर किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी है, इन केस उसकी डेथ हो जाती है और उसका लीगल हायर नहीं होता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी रिसीप्ट्स होती हैं वो सारी गवर्नमेंट के पास चली जाती है। स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट इज़ दैट पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ओनर्स ऑफ those properties whose value has appreciated due to development activities of the government। ये वो पेमेंट होता है जो मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का ओनर गवर्नमेंट को करता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी की होती है जिस वजह से उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो उस वैल्यू में इंक्रीज़ होने की वजह से जो भी पेमेंट वहाँ का ओनर गवर्नमेंट को करता है वो स्पेशल असेसमेंट कहलाता है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज।
एंटरप्राइजेज़। बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेज़ हैं, मतलब वो एंटरप्राइजेज़ जो गवर्नमेंट रन करती है, जैसे इंडियन रेलवेज़, इंडियन ऑयल एक्सेट्रा। तो इनकी जितनी भी इनकम या रेवेन्यू होता है वो सारा गवर्नमेंट के पास जाता है और वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीप्ट्स को फॉर्म करता है। नेक्स्ट इज़ ग्रांट्स एंड डोनेशंस। पीपल बहुत सारे ग्रांट्स और डोनेशंस गवर्नमेंट को देते हैं नेचुरल कैलामिटीज़ के टाइम पे, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड्स, फेमाइंस। तो उस टाइम पे जितनी भी डोनेशंस गवर्नमेंट को मिलती हैं वो उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आती हैं। जिससे अभी कोविड-19 के टाइम पे एक पीपल स्टार्टेड डोनेटिंग टू द गवर्नमेंट। सो वो भी जो था वो हमारे ग्रांट्स एंड डोनेशंस और रेवेन्यू रिसीप्ट्स में आता है ऑफ द गवर्नमेंट। सो टुडे वी विल कवर till here only, and in our next lecture we will start with the capital receipts. Thank you.